Hello, ma'am. Good evening. Yeah, very good evening. Fine. So, ma'am, I'm from the HR department. My name is Sakshi, and here's Ravi. So, Ravi, you're going to have your meet with Dr. Neha Agarwal, ma'am. So, please go ahead, ma'am. Okay. All right. Hello, Dr. Ravi. Congratulations. Thank you, ma'am. Yeah, so Dr. Ravi, before we start, can you briefly introduce yourself? Myself, Dr. Ravi. I have done my MBBS from Maulana Medical College, and I'm 2015 math student from there. And I did my internship in 2020. And this is I first gave IMECT in November 2020, in which I got 329 rank, but I was not getting the choice of my branch. So this time I'm getting 23 rank. Maybe I will be a branch. Wow, I think amazing journey. Yeah. So you have joined our TND? Yes, I joined the TND in 2020, and along with the TND, I was given the subscription of eGurukul, on which I watched the videos of Dr. Ashwini and Dr. Salim sir. All right. All right. Okay, so we will begin with it now. You are ranked 23 now? Yes, ma'am. All right, amazing. So, hello everyone, and today I'm really excited to be with another great ranker, Dr. Ravi, with us, who has an amazing journey from a three-digit rank in INICT to a double-digit rank just now, that is 23. So, hello, Dr. Ravi. Hello, ma'am. Heartiest congratulations. I think you had an amazing journey. Yes, ma'am. It was a long journey, but finally it has come to an end. It is very satisfying. Yes. So, what are your feelings? I just can't explain what I am feeling. I'm just elated from yesterday when the result came. Mm-hmm. So, were you expecting double-digit rank after your paper? Ma'am, after the paper, I knew that my exam has gone good. There is a feeling that comes that yes, I have. Yes. I was that. There was a feeling that I have done my part. Now let's God decide what my fate will Yeah, be. means like when we give the paper now, we know our from Yeah, within कि that मेरा what अच्छा kind of गया है खराब paper गया है खराब गया या अच्छा गया. वो Yes, फीलिंग आ candidate जाती knows. है. तो Feeling आ मुझे जाती पता है. था 2020 में मुझे पता था कि हाँ मेरा काफी जो चीज मैं गलत किया हूँ वो बहुत सिली मिस्टेक हो रखे हैं, तो मुझे पता था कि मुझे अच्छी रैंक नहीं आएगी. और अभी हाँ, समय था कि तो चलो. वो है मतलब हमें पता चल जाता है अंदर से कि what kind of paper like we had attempted. Okay. So, how did you started your preparation and when did you, become serious for your preparation? Ma'am, I was preparing. I started preparing seriously for using entrances in my internship. उसके पहले मैम जब प्रॉफ होता था उसके लिए तो पढ़ते ही थे, और मैम से में मतलब एकेडमिक्स अच्छे होते हैं तो काफी हमें अच्छे हैं. पढ़ना पड़ता है. काफी काफी टेस्ट हम्म. होते रहते हैं और काफी हम्म. एग्जाम सीरियसली होते हैं हमारे कि अच्छे से पढ़ के ही देना है सबको. तो उसके लिए पढ़ते थे तो उसमें कॉन्सेप्ट काफी बनते हैं. And बाकी yes, उसके बाद that lays the foundation, I think, and that is always important. All right. But the past year, जैसे कि तुमने बोला भी कि नवंबर में the rank was not that good and you were not satisfied with it. And I think the atmosphere was also not very satisfying and it was a very difficult time, I must say, for the PG aspirants. There was a pandemic era, there were lockdown, postponements, classes were not happening, you were not able to go to the postings. Yes. So everywhere there was negativity. So what you did and what was your that key to success to keep your pace to avoid this negativity, so what did you do for that? मैम मेरा ये था कि मैम मुझे एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. मुझे पता था कि
दिन खराब आ रहे हैं, कभी दिन कोई अच्छा चल रहा है, कभी दिन कोई ऐसी न्यूज आ रही है कि किसी को घर में कोविड हो गया, कभी किसी को ये हो गया, तो उसमें कंसिस्टेंसी चेंज होगी। बट मुझे ये था कि मुझे मिनिमम इतने जो मैं कर सकता हूँ वो रोज करने हैं। तो वो मैंने करीब जून जुलाई से मैंने थोड़ा स्टार्ट किया कि अच्छे से रोज रोज क्वेश्चन कुछ रोज लगाऊंगा, और फिर धीरे धीरे मेरा वो कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे मेरा इम्प्रूवमेंट भी हुआ मार्क्स में। और फिर मेरे मार्क्स मतलब नवंबर तक सही हो गए थे, बट एग्जाम में मेरा थोड़ा खराब हो गया। एग्जाम में गड़बड़ हो गई थी। हाँ, बाकी टेस्ट तो मेरे सही जाते थे उस समय तक, मुझे था कि मेरे रैंक आ सकती है 100 के अंदर, बट एग्जाम उतना अच्छा नहीं किया जैसा आई थिंक एक बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे उतने नहीं आए तुम्हारे अकॉर्डिंग लास्ट में, बट हिम्मत नहीं हारी। वो कहते हैं ना कि फोकस रखना और अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना वो बहुत जरूरी है कि नहीं, आई कैन डू इट। इस बार गलती हो गई है, दैट वाज नॉट माय बेस्ट अटेम्प्ट, एंड सी रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, है ना। तो बहुत अच्छा बोला कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती है ना, उस वक्त कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मोस्ट डिफिकल्ट भी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होता है। व्हेन थिंग्स आर राइट, हम भले एवरीबॉडी कैन बी कंसिस्टेंट। छोटे छोटे स्टेप्स ले, बट डेली कुछ स्टेप लेंगे तो हम काफी आगे तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही तुमने कि डेली स्टेप लेना बहुत जरूरी है। वो छोटा हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है, लेकिन चलते रहना, शो मस्ट गो ऑन जिसे ये बोलते हैं, वो करना बहुत जरूरी है। तो क्या रवि तुम रेगुलर थे टेस्ट में? मैम टेस्ट में मैम मैम मंथली में एक टेस्ट देता था, कोई भी कहीं से एक जीटी में मंथली देता था। बाकी मैंने अक्टूबर नवंबर में थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जीटी की, फिर इसके बाद जनवरी से मैंने इस 2021 के जनवरी से मैं दो दो जीटी हर महीने दे रहा था। एवरी 15 डेज देते हो? यस मैम। ओके, तो डिफरेंट सोर्सेज आए, कितनी, जो भी सोर्स मिलता है मैं वो उसमें दे देता हूँ। ओके, तो कितना तुमको लगता है कि ये जो टेस्ट देते हैं उसका कितना पार्ट है हमारे स्कोर में, हमारी प्रिपरेशन पे कितना फर्क पड़ता है उससे? मतलब हाउ मच इम्पोर्टेंस विल यू गिव टू गिविंग दीज टेस्ट? हम बहुत इंपॉर्टेंस पड़ता है, क्योंकि लास्ट में जो हमें एग्जाम देना है वो एज ए होल 19 एग्जाम ही सब्जेक्ट देना है, ऐसा ही देना है, ना बिल्कुल। कि कोई एक सब्जेक्ट को पढ़ के हम उस सब्जेक्ट का टेस्ट देते तो हमें ये हम कॉन्फिडेंस बना सकते हैं कि हम उस सब्जेक्ट आ गए, बट हो सकता है कि जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट की कुछ चीजें हम भूल जाए। तो एज अ बिल्कुल। होल 19 सब्जेक्ट मुझे कितना याद है ये जीटी ही बता सकता है, और क्या मतलब एक मैं भूल रहा हूँ। साइमुलेटेड जो कंडीशन होती है कि आप एग्जाम वाली चीज एक अलग से फील कर लो कि हाँ एग्जाम में मुझे ऐसे होने वाला है, वो एक एनवायरनमेंट हमें मिलता है टेस्ट से। ठीक है। और ओके, जीटी के लिए हम पढ़ भी सकते हैं मैम, अगर हम सीरियसली ले तो एक जीटी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हाँ ये प्रिपेयर सब्जेक्ट कर थोड़ा सकते वीक था हैं। तो इसको इस सब्जेक्ट को इम्प्रूव किया इस जीटी में, हो सकता है दूसरा हम्म, सब्जेक्ट और इम्प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल। किसी और GT। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आपका पूरा स्टडी हो चुका है, आप पूरा रिवीजन कर चुके हो, तो एक शेड्यूल बनाना भी हमें अपने आप से मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे इन सारे 19 सब्जेक्ट्स को कवर करें, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के जो हमारे पर्सनल चैट पे टेलीग्राम पे मैसेजेस आते रहते हैं कि हम लोग एक टाइम टेबल नहीं बना पा रहे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग टाइम टेबल नहीं बना पा रहे या अपने टाइम टेबल को वो फॉलो कर चुके हैं, उसके लिए भी क्या ये एफिशिएंट है? क्या इसके हिसाब से हम पढ़कर अपने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं? यस मैम, जीटी के साथ साथ जैसे हम कोई सब्जेक्ट कर रहे हैं उसके साथ एक हम जीटी दिए तो उसमें उस सब्जेक्ट का इवेल्युएशन कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले किया था, तो इस सब्जेक्ट हाँ। में मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि सारा सब्जेक्ट इम्प्रूव होगा, बट जो सब्जेक्ट हम्म, हमने रिसेंटली पढ़ा है उसका तो फायदा होगा ना। और ऐसे ही धीरे धीरे सब्जेक्ट हमारे बढ़ते जाते हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरा हो गया, ये भी जीटी में किया था। जीटी बिल्कुल। शुरुआत में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा हमारा एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद फ्रीक्वेंसी आप जीटी बढ़ा सकते हैं। हाँ, क्योंकि आई थिंक फीलिंग ऑफ लो भी बहुत जल्दी आ जाती है जब लो स्कोर्स देख के। आई थिंक स्टूडेंट्स बहुत हाँ, जल्दी अफेक्ट हो स्कोर्स ऑफ जाते हैं जीटी को उससे। कभी मैं सीरियस नहीं लेता था, कभी अच्छा भी आ हाँ, जाए कभी कभी खराब भी आ लेना जाए, भी आई नहीं नेवर चाहिए, टुक दैट इज अ वेरी गुड थिंग, नेवर नहीं टुक इट लेना सीरियसली। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लेना भी नहीं चाहिए। और क्या तुम एनालाइज रिव्यू करते थे अपने जीटी आकर? यस मैम, मैम मैं करता था, बट ऐसा भी नहीं कि मैं दिन भर वही कर रहा हूँ, मैं बस देखता था ओके ये ऐसा है, चलो इसमें ये गलती
जो सिली मिस्टेक्स थे उसको लेकिन रिव्यू करना जरूरी है या नहीं जीटी को? यस मैम, बहुत जरूरी है। रिव्यू नहीं किया तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ फिर सिली आई थिंक वो मिस्टेक कर रहे हो। टेस्ट देने की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाती है अगर आप रिव्यू नहीं करते तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेरी गुड। तो आपने जैसे कहा कि योर प्रिपरेशन वाज गुड इवन लास्ट ईयर बट यू कुड नॉट स्कोर दैट गुड, है ना, एंड दिस ईयर यू कुड। तो क्योंकि यू हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग नॉट सो गुड आई न्यू मार्क्स एंड दैट देन मैंने ये मिस्टेक किए, मुझे ये नहीं करना है इस बार। मैं पिछले बार एग्जाम के पहले पैनिक हो गया कि स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं एनालिसिस जो तुमने की, आई थिंक वो उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर बंदा उसी चीज को नेगेटिव ले लेता तो आई थिंक कुछ लोग डिप्रेस भी हो सकते थे, बट यू टुक इट इन अ पॉजिटिव वे कि आई नो आई हैव डन दीज मिस्टेक्स, आई विल रेक्टिफाई देम एंड आई विल कम अप विद अ बेटर वन। तो वही आई वांट टू यूज दिस ऑफ योर एक्सपीरियंस फॉर द अपकमिंग एस्पिरेंट्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रवि इस बार अच्छा नहीं किया, मे बी इट इज देयर फर्स्ट चांस एंड दे कैन इम्प्रूव इन द अदर वन। So what message would you like to give to these students that whatever you have learned from your experience that they should not do, they should not repeat that mistake? पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि we should all believe in ourselves that we can do it. If anyone other can do it, we also can do it. There's nothing special in anyone else. So मैं भी कर सकता हूँ, कोई और कर सकता है। तो अगर ये माइंडसेट होगा तभी पहले आप एग्जाम को, आधा एग्जाम तो आपका इससे पहले निकलेगा, उसके बाद एग्जाम के लिए आपको सही माइंडसेट से, मतलब वो सही डायरेक्शन में पढ़ना है कि क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं वो पहले वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद कुछ हाई फाई अगर पढ़ना तो पहले हमको बेसिक्स को इतना ऐसा करना है कि उसको हम फाइनल लेवल पे रहे कि हाँ कोई भी पूछे तो हम उसको हम अच्छे से बता पाए। बेसिक्स एटलीस्ट हमें को उसको एकदम कंसोलिडेट करना है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, अगर हमको टाइम बच रहा है तो देख लेंगे। अगर बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग नहीं है तब तक आप रैंक लिस्ट में नहीं होगा। अगर अच्छे रैंक लिस्ट में अगर उसके बाद बेसिक्स अगर बस हाई फाई करके चले जाओगे तो नहीं होगा। इन बेसिक्स करके भी आप, बहुत हाई फाई नहीं करके भी आप एक डिसेंट रैंक ला सकते हो। मैं तो ये कहूँगा। आई थिंक बहुत ही अमेजिंग मैसेज है इसमें कि ज्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, टू फियर ऑफ लूजिंग समथिंग के चक्कर में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल ओवर, जैसे कहते हैं ना, कंटेंट ओवरफ्लो कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। आई थिंक स्टिकिंग टू द नोट्स एंड रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन। फाइनली हमें लास्ट वीक में वो 19 सब्जेक्ट का निचोड़ चाहिए जो हमें वो एग्जाम में चाहिए। तो हम जितना कम और जितना हाई यील्ड चीज को लास्ट में पढ़ेंगे उतना हम ज्यादा, क्योंकि हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते लास्ट में, नहीं पढ़ सकते। मेन चीज है कि हमें हाई यील्ड चीज करनी है और हाई यील्ड चीज को बार बार करनी है। और वही आपको तो कहीं ना वो जो लालच होता है ना कि और 2 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ ले, उसको थोड़ा सा रोक के रखना उसको बहुत जरूरी है। छोड़ना पड़ेगा। वो था मेरे में पड़ेगा। काफी था, ये पढ़ना, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, लेकिन लास्ट में जब आप रिवाइज करने बैठते तो लगता है कि यार क्यों पढ़ा था मैंने ये तो अभी मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। उसको एक बार पढ़ने से 2 महीने पहले पढ़ा था, लेकिन अब तो पढ़ ही नहीं सकता मैं। जो भी बेसिक है वही नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो वो आगे का क्या पढ़ूंगा। तो मतलब वो चीजें जो आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, आई थिंक उसे पढ़ने में भी टाइम वेस्ट करना कोई नहीं चाहिए। ओके। और इस बार ये बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि टाइम की लिमिटेशन बिल्कुल भी नहीं थी, टाइम की शॉर्टेज नहीं थी। आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनका कोर्स कंप्लीटेड नहीं था, उन लोगों ने इसका एडवांटेज भी लिया है पोस्टपोनमेंट की वजह से। बहुत सारे लोग जो है ना कंपटीशन में जो नहीं थे, दे आल्सो केम अप इन कंपटीशन बिकॉज नाउ दे हैड टाइम फॉर रिवाइजिंग एंड कंप्लीटिंग देयर कोर्स। ओके। और क्वेश्चन भी काफी बेसिक थे तो लोगों ने जो गेस मारे, अगर उनके अच्छे गेस लगे वो तो भी ठीक हो गए। आई थिंक रिकॉल क्वेश्चंस वर आल्सो प्रीटी गुड, काफी ज्यादा थे इस बार रिकॉल क्वेश्चंस भी। ओके। और आईएनआईसीटी के पैटर्न जो था 2020 का, उससे भी काफी सारे क्वेश्चन, मतलब हाँ वही मैं कह रही हूँ, रिकॉल काफी सिमिलर आए है ना। सिमिलर। ओके। तो अच्छा एक बात बताओ कि व्हाट इज वन थिंग दैट like made you different from the crowd? जैसे everybody is studying है ना, but not everybody is getting the same score. So what do you feel that what was that one thing, or maybe it could be more than one thing that was special, जो तुम्हें लगता हो कि मैंने ये किया जिससे मुझे काफी benefit मिला? What do you think? मेरा ये था कि मैं कभी डिसहार्टेंड नहीं होता, कि मुझे ये नहीं था कि मुझे एम्स नहीं मिलेगा तो मैं
कुछ वैसा हो जाएगा या फिर मेरा खराब रैंक आ जाएगा तो एक्सपेक्टेशंस कुछ। के बिना किया, हाँ, अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं एक्सपेक्टेशन रखी, ज्यादा रखते हो तो ज्यादा बुरा भी लगता है। मैं सोचा हर्ट कि भी नहीं हुआ, ज्यादा चलो होता है। अभी नीट पीजी है, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, और मेहनत कर रहा ओके, हूँ मैं तो कभी ना कभी हो ही जाएगा। और मैटर नहीं करता कि मैं कहाँ से करूँ, मैं मुझे ये है कि मुझे करना है, और अगर मैं अच्छे से करूँ तो मैं कहीं से और भी जगह से कर रहा होता तो, और वो ऐसा ट्रेनिंग कर सकता हूँ जैसा एम्स में करूँ या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट में करूँ। तो डिपेंड करता है परफेक्ट। कि आप कैसे कर रहे हो अपने पीजी को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आई थिंक यू वर डूइंग द इंटर्नशिप आल्सो along with this. Ma'am, in 2020, our internship was extended for 1 month in January Okay. because in COVID we didn't have training. So So, like when you are doing like your test along with the internship, you have to manage both the things. So, what did you felt like our Delhi staff and all the people they did cooperated with you? Because we always get this that we yes, have to ma'am. take the classes, we have to give the sessions according to the children, according to the students, because they have the internship and it's really hectic. So, I wanted to ask you on the personal note that what is your feedback about it? Yes, ma'am. I miss the micro TND in when I was having heavy duties during that time when micro TND was there. तो जब Mm-hmm. मैम, फिर मुझे था कि मुझे करनी है क्योंकि मुझे पता था अच्छी अच्छी TND थी उसकी। तो फिर मैंने रजत सर को मैसेज किया कि ऐसा ऐसा है, मेरा छूट गया है, कि मुझे फिर से एक बार वो वीडियो आप हम्म। दिलवा दो। तो सर ने मैसेज करके फिर आपके टीम से मुझे मेरा ई गुरुकुल पे ओके, वो तो ऐड मतलब करा दिया। टीम ने कोऑपरेट किया आपके लिए, यू आर हैप्पी विद यस the all the staff and the academics as well as technical, you are happy with it, यस मैम, all were very supportive. all are They were just a supportive. message away from. Yes, like that is our basic purpose, that students should feel this. We are always at a message away, but students should also feel that they should be so, non-hesitant to message us that we are just a message away. So I wanted to give that message actually via you to the students that see, we are really a message away, and whenever you feel something, you have to just give us a call or a message and we are there. Right. So, any do's and don'ts, Ravi, that you would like to give to your juniors and the colleagues that they should do and they should not do in order to get a good score? And we should not fear the examination because it is a central institute examination. The questions are very basic. I felt Yes. them that the GTs were bit more tougher than the original paper. I never find And GTs we such always say easy. this also, that if you are able to perform well in the GTs, you will get a better rank. Means your ranks are always better in the final exams because we are keeping our levels very high of the questions, so that you are able to, churn your minds. You are able to push your limits, Yes. right? And we should also remember that questions are very basic. So we should not always think that every every question will be twisted. So sometimes the examiners just want to know that you know the basics or not. So हाँ, एग्जामिनर्स बेसिकली टेस्ट करना चाहते हैं कि आपने वाकई कभी किया है या नहीं, कभी देखा है yes, या ma'am. नहीं. Basic हाँ, procedures. बेसिक Just प्रोसीजर्स, राइट. इस पर क्वेश्चन था कि सी सेक्शन में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो हमने अगर पोस्टिंग अटेंड की है, कभी देखा है, तो हमें पता है। पता है, बिल्कुल. तो तो वी आई शुड थिंक ऑल्सो, अटेंडिंग द क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी इम्पोर्टेंट रहते हैं कहीं बहुत ना कहीं. इम्पोर्टेंट है दे ऑलवेज से, खासकर एम्स यस, के एग्जाम के लिए, क्योंकि वो काफी क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुत आपको पूछते हैं. पोस्टिंग्स में काफी हेल्प मिलती है आप अगर एक और बार आप देख लो तो वो चीज आपको हमेशा याद रहती है, रादर कि आप यस, कितनी बार पढ़े हो। कोई केस, आप बिल्कुल. अच्छे केस अगर आप कोई अपने ओपीडी में देख लो तो हमेशा याद रखता है कि हाँ ये केस देखा था मैंने, इसमें ये चीज था यस, दिखा था मुझे। यस. एंड उसी की कहीं ना कहीं वैक्यूम को रिप्लेस करने के लिए, बिकॉज मेनी ऑफ यू वर नॉट एबल टू अटेंड द पोस्टिंग्स इन द लास्ट ईयर, वी डिड इवन स्टार्टेड विद द क्लिनिकल वीडियो, सो दैट
you can have a virtual medical college there. You can feel that yes, C-section is going on, or a tonometry is going on, or a Maddox rod test is going on, so that you feel that you are attending that posting. So we are all also trying to compensate for those clinical postings that like students could not attend in the COVID times. So, all right, I think a great message, and it is very nice to hear from the rankers, because we have also been waiting for so long to hear from you people, and definitely it's a proud moment when or when you come to know na, that all of your students have worked well, and they all have come up with the such amazing scores. I cannot share the feeling that we people are having right now. So thank you so much, Dr. Ravi, and heartiest congratulations once again. Wishing you all the very best for your future endeavors too. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, so congratulations, Ravi, and we should be putting up this on end. Okay. Okay. All right. Good night. Good night.